So, Advocate Swati, I am very sure you must have seen few videos and few of my oration and narration Yes, about. sir. I not regularly, but mostly I have a glance at it. Okay. Yeah, To I what have seen. extent you find yourself agreeing to the what is being said? It is that much as far as I have seen. It is about corruption and everything. That is what is about. No, what we are saying that Hmm. corruption and everything, it is just a manifestation. The root cause somewhere lies with the system which we have inherited from Mr. Nehru, which has been imposed on us. I agree to this. Okay, matlab you agree that whatever the rules, regulations, laws which were enacted by Britishers Yeah. to exploit, rule, and to some extent even insult Indians, those were all of them they were imposed on us without changing of the comma or full stop. Do you agree with that? In that detail, I have not gone through it, No, but but you know that nothing has been changed, even whatever yes, the I will say it is very outdated. IPC outdated will also and not be everything. It is suffice. very, Whosoever very no no outdated. It needs to be amended. Swati, that is just you are reflecting on the need of amendment. I am basically questioning whosoever enacted it. It Hmm. was enacted to rule slave Indians. Like how? Like which point? Say the police act, it is still being police is being governed by the Police Act of the 1861, and this act was enacted by the Britishers after the first war of independence that happened in 1857. Yeah, I So agree that is what, sir, I'm saying, that it is very outdated, IPC and outdated, everything. Swati, please listen me. Hmm. Outdated is a just saying outdated. I am very basically questioning the intention of the creator or who the Britishers who enacted it. It Hmm. was basically to run their empire. It Hmm. was basically to rule slave Indian, to Hmm. exploit slave Indians, to Hmm. Hmm. insult slave Indians. Hmm. Hmm. And that system which has been created to impose these rules, Hmm. that system was inherited with a lot of lordship. The IPS British officer, we rule. are saying Hmm. we are Hmm. the lords with Hmm. no accountability whatsoever. So according to you, sir, what is the solution for this? What should be done? No, basically, first we have to really get into the root of the problem. Hmm. Then we should talk about the solution. Because without understanding where exactly the root, otherwise everybody will say the manifestation you will consider as a root. Manifestation is just manifestation. Root lies somewhere else, right? So Hmm. we have to really appreciate that whether it is the root or where is the root. So I am trying to get into the roots. Number one, laws Hmm. which were enacted by the Britishers, Hmm. then the administration, which was Hmm. obviously when it is meant for ruling slaves, it Hmm. has Hmm. to be with the lordship. So, and unfortunately, rules, laws, Hmm. and the system has been Hmm. imposed without changing comma and full stop. And Hmm. if any change has been made, Hmm. to give the more power to the system to the Hmm. Hmm. disadvantage of the common citizen. Hmm. Hmm. So whether it is a income tax, whether it is a enforcement directorate, whether it is a CBI or whatsoever, Hmm. they Hmm. have been created with the little greater powers to Hmm. cause greater harms to the Indians. Hmm. Hmm. Now, third dimension is the political dimension Hmm. that basically Constitution never mention any party, right? The Hmm. Hmm. party words it came only in our People's Representative Act 1951, Hmm. right? This Hmm. this was enacted to provide a political layer Hmm. on the top of the rules, regulation, and administration. Hmm. Hmm. This political layer has been construed and conceived with a greater fault and with that again with the same intention to rule slave Indians. That's Hmm. why the political system which has been created, Hmm. which is coming in power with your vote, Hmm. they are not accountable to you. They don't care for you. Hmm. They are elected by your vote, but they owe all the responsibility to their party. Hmm. Hmm. They are not accountable to you. They don't care Hmm. for you, as simple as that. Basically, the whole system is corrupt. The thing is this.
Corruption is a manifestation, not root. We are talking about the root. So we will come to the corruption also, but give me 1 minute more to really make you appreciate this dimension, because this dimension is very, very critical, because this dimension is having the rule making power, right? Now, these political party, to whom they are giving tickets? Are they giving tickets to the very meritorious people? No. No, anyone they want, their choice. No, they are giving. I have basically conceived that they are generally giving the tickets to the 5 category people, and I They're will selling appreciate. selling it basically. I will appreciate if you can add 1 or 2 category more in it. So the 5 categories. Number 1 category is that is whosoever can give them the more money, they are inclined to give the ticket to that person. Yes. Right. Number 1. Yes. Number 2, they are giving tickets to their wards of their leaders, Akash, right? I mean, though with the 0-day experience, right? And they have been given the ticket if they are lucky enough to win, and they have been offered ministerial berth also, and sometime with the cabinet berth, and they are born with the ambition to become chief minister or maybe the prime minister as well. Right? So that is the 2nd category. Then 3rd category, they give the ticket on the basis of the caste and religion with to whosoever is having the winnability or likelihood to win election. But at the same time, there is a condition. Those people should not be meritorious, because if they are meritorious, then they will create a challenge to the present incumbent of the power, so-called high command. So they should be less meritorious than the people those who are sitting in high command. And if by mistake they will give the ticket to this little more meritorious people, because they could not realize that they are meritorious people, the moment they will realize that But sir, this is something next to impossible to change in this particular. this is so easy. It is doable within 9 days. So first have the patience to listen me, right? And everywhere I will allow you to contribute, so that there will be value addition. I can learn from your perspective, you can learn from my perspective, because you may be having some personal experience which may not be. Sir, I have, because my father, IS officer, UP cadre, Mr. Ramashankar, he retired in 2016 from Lucknow. Okay. And my Tauji, HS Balwaria, he was IPS UP cadre. You must be knowing him. Hoshiyar Singh Balwaria. He was DG UP before he retired. So sir, great. I have a lot of personal experience. So I expect you to really add into the deliberation, contribute, add the value to this deliberation. And you can add to the stories also if you are having some stories in your personal knowledge, right? So the 3rd category is the giving the ticket on the basis of caste and religion to the person having likelihood of winning election or winnability. But at the same time, there is a condition: they should not be meritorious. At least they should be less meritorious than people sitting in the high command. Right? That is the 3rd category. Then 4th category comes the people, those who are from the other political parties, and they have come to the conclusion that their part of the grass is already dried, and there is no chance of coming to the power. And for the sake of the power and to maintain their clout, they are switching over Dal Badlu Lok, and they will join another party, and these party people will offer them dayas, will offer them, garland them, will shawl and nariyal, and then will give them the ticket, and will offer them the ministerial berth also. So that is the 4th category, right? And 5th category, the giving the tickets to the criminals. And now it is very unfortunate. I am very sure you must be knowing that, being a learned lawyer, that our parliament, which is current parliament, which is 19 to 24. Most of them are having FIRs registered against them. Many of them. When we talk most, then we are not really factually correct. Let's talk factually correct dimension. 42% of them, as per their own admission, they are having criminal record, and 29% of them, they are having heinous criminal record to their record, like murders, kidnapping, rape, loot, dakati, etc. So these political party,
they don't find good people to join them. Are we talking about any particular party here? Or Uh, all the parties? Everybody is doing the same. No party is better. No party is better. They I are also think same. with they this are point. they are equally guilty. And if we talk of the BJP, it is no better. I would like to say very stressfully. So they might be having a different face, but the reality is different. And then fifth category is about the criminals, which we said. Do you know that in UP, you hails from the UP state, you must be knowing that out of 403 MLAs which has been elected recently, 205 of them, they are having the criminal record, which makes it 51%. Definitely, sir. Most of them. That is why I said. I am saying, to be precise, 205, which makes it 51%. So the criminals would be your lawmaker. Yeah. How unfortunate it is. Yes. Right? Now, we have to discuss a little bit about how they really win the election. Whether it's their popularity or something else is playing the magic. So, before going to the second point, I would like to now really request you to add value to the point I have narrated. Would you like to remove any category, or would you like to add any category? Sir, I think all the categories are apt. Okay, so you agree with that by and large, and you won't like to add anything, or at least not immediately. You may like to add later on, right? Yes, sir. Yeah, Okay. I'll think about it. And then you can come out and we can add those category while we will be deliberating second time, right? Yeah. Now let's talk how they really win election. So I have done certain analysis about their winning election. So each party has created IT cells, and IT cell is having three type of work. Number one, their schemes, their work, which may not be delivering anything on ground, they will blow it out of proportion to do their Mahima Mandan, right? The second is that opponent parties' work, or even their saying or communication, that will be picked up out of the context and that will be blown out of proportion, and just to minimize their work, right? So that is the second work of the IT. And the third important work of the IT cell of these parties, they are now very aggressively hunting. You must have heard about the CEO hunting or head hunting. So in corporate world, they hunt for the CEO, right? And they offer them the big salaries. In the similar way, these IT cells, they hunt for the social media handlers, those who with their own hard work, they could created viewership in lakhs and crores. And then they are brought on the purchase list, they are bought, and they are paid. And then they become the mouthpiece of these political parties. And you can, if you analyze that social media, you can find out many of them, they are mouthpiece of one or other. Do you agree with this? Yes. Okay. So now everything has become paid. IT cell, social media. Now comes to the third dimension, that is the print media and electronic media. Now there's a lot of paid news. So you can see the budget which is being spent by the government and by these political parties for pampering this electronic media and print media. And the print, there's nobody, because these people are also really living for their livelihood, and they are just puppet in the hand of their owner. And they cannot write beyond a point. So they are just puppet. So, they really, at this stage, they don't have the right to say they are the fourth pillar of democracy. Yeah, the level of journalism has gone very down. Basically, if I think over it, I always feel it is largely on account of livelihood option. उन्हें अपने पेट पालना है, that is the problem. जो पैसे इनको मिलेंगे अच्छे, तो ये कुछ भी छाप देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं. हाँ, अब तो उससे आगे चला गया है. अब तो जो जनसंपर्क वगैरह बताता है कि सर इसको बुलाओ, ये कहना है उसे, राइट? यदि कुछ गलत कहा जा रहा है या कुछ गलत लिखा जा रहा है तो ये बोल से कि सर इसको चेंज करो. जहाँ जिसकी ज्यादा चल रही है, जो ज्यादा पैसा दे रहा है, वो कहेगा भाई पब्लिश होने के पहले मेरे पास अप्रूवल के लिए भेजो. Now situation is very, very bad. Earlier we used to go to listen our popular leader, even sometime even walking kilometers together.
Now this political party made it also a paid Amsabha, where that buses and trucks or lorries are sent, and arrangement for their breakfast, lunch, and dinner is also made, and they are paid 500 rupees, and they are not the voter. And these Amsabha, they have also become the paid Amsabha, and a kind of impression is being created. They are very popular. Yeah. Now I will come to the sixth dimension, that is survey. So in present corporate world, if you look, say I will go a little back. I will say that earlier when we were the students, and you must have also read that, we used to extrapolate present demand for the future demand, right? Because what is the demand now, and when looking at the trend, we will extrapolate it the future demand, right? Now it is not behaving that way. Now startups are coming, many people are coming. They are thinking what you need, and they are creating product of your requirement, and they are saying, hey, I have created a product, you need it. The similarly, political party will give their survey what they feel, what could be the best performance and which seat they can win, and that performance will be given to this so-called paid surveyor, and they will put it into the very logical kind of analysis and report, and these all kind of the paid things will be put together to realize that paid survey, and they will be paid for doing a good work, whereas it is a hypothetical creation, because that survey is also fake. It is created, and people made to believe that this is the party who is going to win, and that's how they are winning election, right? So now paid ke baad, let's go to the another dimension. They are basically using caste, creed, and religion to divide and create them as a vote bank, create fear, create riots, and posing themselves they are the savior, though they are not. Here I am making a reference to the BJP. They are projecting that they are savior of Hindus. I say they are not. They are absolutely not. Had they been the savior of the Hindus, they would have repealed Worship Places Act 1991, which has been created by a coalition government of the Narasimha Rao, right? Which has taken away your right. Being a lawyer, you will appreciate it better. The section 4 of that law act says that no court shall take the cognizance. So court are debarred from taking cognizance. तो इसने तो आपको जो है दया न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया आपसे. आप तो बड़े गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा ये बताइए, आपकी जो है ना ढेर सारे एक्ट्स बनाए गए, द बेसिक फंडामेंटल राइट विच हैज बीन गिवन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, that nobody can be differentiated or discriminated on the basis of caste, creed, race or religion. Then Waqf board कैसे continue कर गया? It should have been the day constitution has come into the power, it should have been quashed, because it is ultra virus. It is infringement of the fundamental right. Do you agree with that? How that Yes, minority commission has come into the play, how this minority ministry has come into play, how that 15 point, 20 point. If in last 1000 years, if anybody is suffering continuously, it is Hindus, their culture, their Vedic knowledge. So after the independence, when Muslim got their own country, there was every right that interests of the Hindus should have been protected in India. Do you agree with this basic connotation? Yes, I do. So, whether so-called the Hindus Masiha have done a single act, they removed Article 370, right? Then why they have brought from the back door a domicile policy which has not been deliberated and discussed, which is exactly on the line of Article 370. About that policy, sir, I'm not aware yet. So you can search it, domicile policy of Jammu and Kashmir, which said that you have to be there for 15 years and at least you have to have the 7 years of education, failing which you won't be entitled for the domicile certificate, and person having domicile certificate are only eligible to serve in Jammu and Kashmir. Right from A to D all categories. So I am failing to understand.
If the purpose was to give them the employment, the better option would have been to give some kind of the percentage in everywhere in all other places. So there would have been a real integration, and the domicile policy should have been exactly on the line of the other states. So, but that has not been done. Tell me, you are again an advocate, so I am having the right to ask from you, and I expect a very learned answer from you. Whether the president is having a power to create any article? I don't think so, sir. No. Yes, I agree with you. No. We can say very affirmatively no. Even ordinance could be brought, it will lapse if it is not approved by the parliament within 6 months. What I feel is, sir, president is not having any powers, just acting as a puppet. That's it. Let's talk specifically whether he can bring in, because I will be discussing a particular article, Article 35A, how it has been deceitfully brought into the constitution, and all the attempt has been made to camouflage it. Sometimes it is called rules, some call this, that. So how it has come into the force by the just notification from the president, because Article 370 says he can make any article applicable to the Jammu and Kashmir. That power is given to the president, that too with the concurrence of the local assembly and things like that, right? Because all the main powers rest with the prime minister. So power, say president is a titular head, so final power is with the president, but it is on the recommendation of the cabinet. Head of the executive, president. Yeah, it is by the cabinet basically. The cabinet is a collective responsibility. So I mean, we are not going into the constitutional deliberation. We are just saying that Article 35A, it has been wrongly, unconstitutionally imposed on us. It was removed in 2019. Why they did not collect the courage to say that it was a unconstitutional move on the part of the Congress, which has created all problem. दो संविधान ये वो सब चीज तो उसी के थ्रू निकली है. Even atrocities on Dalit, all those has been done through Article 35A. Sir, I have to read 35A in detail. You must read. Then I'll be able to comment on it. No, but one thing you can say without really reading it, that president is not having any power to create any act. So to the extent it has been created by the notification of the president, it is unconstitutional move without even knowing the content of 35A. I think to that extent you will agree with me. Agree? Okay. So now in this deliberation we talked the 3 dimensions. First dimension was about the rules, regulation and laws. Second dimension we talked the administrative machinery. And the third dimension we talked about the political machinery. And if we come to the conclusion that even that Raj Satta which is coming into the power on the vote of the people, they are not accountable to us. They are accountable to their only political party, and that political party is doing a fraud with the country, because it is not bringing the best from the country for the serving the nation, right? So though they are elected by us, but they are not accountable to us, then what is our status? Yes, what does then democracy mean if we cannot question them for anything? We are not here to just vote and they make the government and so हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की, गुलाम तो हमने कानून और प्रशासन से कर दिया. सत्ता भी जो बनी वो हमको अकाउंटेबल नहीं है, और वो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध रोज जो ना डे इन डे आउट जो है तुष्टिकरण नीति के तहत नियम कानून बना रही है. So Advocate Swati, you will agree with me that this whole system is the root cause of all our problem. So I created one axiom for it. Sir, just speaking in the mid. So basically what I have understood, your fight is not against any particular political party or anyone, but it is against the system on behalf of a citizen, right? Very true. Very true. With a capability to defeat them without expending even a single penny. Because if we will fall in their trap, if we will follow their rules, then as we narrated, we have to spend crores and crores. So if you will have to get the crores and crores to spend,
देन यू हैव टू बी वन मोर जो है ना गंदा व्यभिचारी भ्रष्ट जो है कीड़ा आपको बनना पड़ेगा. यू विल बिकम अनदर केजरीवाल. केजरीवाल के बारे में मेरे एनालिसिस है कि वो मोदी को उसको डायलॉग होना चाहिए कि मैं उम्र में तो तेरा बच्चा हूं बट अकल में तेरा बाप हूं. मैं भी इस देश को बेच सकता हूं, फ्री भी दे सकता हूं और तुमसे ज्यादा दे सकता हूं. I very strongly feel that way. Whatever I am saying, it's coming from my heart. बताइए. वो कुछ भी कर रहा है. वो जो है गोल टोपी लगा के यदि किसी मुसलमान को 1 करोड़ रुपए दे सकता है तो भैया राजा के लिए तो सभी बराबर होना चाहिए. भाई तुम हिंदुओं को भी बांट दो. अभी तुमको मालूम है उसने जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके कोरोना के दौरान फीस वापस करने के आदेश दिए हैं. भैया मुस्लिम के अलग अकेले क्यों? तुम मुस्लिम के शासक हो क्या? आपके पास तो संभाव होना चाहिए ना. सबके लिए बराबर. हाँ, आप ये बताइए उसने सभी जो है ये मदरसों के लिए, मौलवियों के लिए 12,000, 16,000 और 18,000 3 स्लैब में जो है ना मासिक सैलरी दे रहा है. विच इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने टैक्स की मनी से इस तरीके से किसी भी धार्मिक एक्टिविटी को फाइनेंस करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. So they are doing a member of bar council. Actually, I practice in Delhi also and Noida also, and I'm putting up in Noida. Okay. So I'm a member. First, I'm a member of Bar Council of Delhi. Okay. So all the courts of Delhi I'm practicing, and 3 years back I took membership of UP RERA, and I'm working with RERA also. Oh, great. And your and in Delhi, in BCD mostly like सारे ही advocates सब तो इसके भक्त हैं केजरीवाल के. मतलब according because कुछ policies and everything, so whatsoever lawyers love him a lot. आपको ये नहीं लगता है कि हमें इस देश का भक्त होना चाहिए? बिल्कुल. इन हमें should we not rise our parochial consideration? अभी जब मैं बात कर रहा था क्राइम फ्री भारत तो मेरी एक एडवोकेट पूर्णिमा है. उसने कहा सर यदि आपका क्राइम फ्री भारत होगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे. मैंने कहा कि ऐसा ही कहा गया था जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, कंप्यूटर्स आए थे, लोगों ने कहा था बेरोजगारी आ जाएगी. बेरोजगारी आई या रोजगार बढ़े? देखिए यदि जो है क्राइम फ्री भारत आएगा, यदि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एवं नॉन सिविल ऑफेंसेस को एट पार हम 1 महीने के अंदर डिस्पोज करेंगे तो जितने वकील हैं वो कम पड़ जाएंगे. यस सर, आई टोटली अग्री. मुझे इस चीज से तो बीइंग एन एडवोकेट माई सेल्फ मुझे बहुत प्रॉब्लम है. मैं तो घर में भी बोलती रहती हूँ सबको कि बहुत स्लो है हमारा जुडिशियल प्रोसीजर. एक छोटी सी चीज को प्रूव करने के लिए, एक रिलीफ के लिए सालों लगते हैं. एडवोकेट स्वाति जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जुडिशरी नहीं है, दे आर लॉर्ड्स. इन्हें लज्जा नहीं आती है वर्ष में 2 बार जो है जो बाय एनुअल और बाय एनियल कर दिया, उसको बाय एनियल लिखना था और बाय मिस्टेक बाय एनुअल कर दिया, तो इन जजेस को लज्जा नहीं आती है. ये साल में 2 बार एलटीसी लेते हैं. लज्जा आना चाहिए ना कुछ. मैं वही तो कह रही हूँ ना, सब कुछ जुड़ा हुआ है. एक जगह प्रॉब्लम नहीं है. सबको ऐसे आदत पड़ चुकी है कि 10 दिन का काम 10 साल में करना है. सोते रहते हैं सब लोग. स्वाति जी, मैं आपको एक वो आपने एक पहले जो है ना एक्सियम सुना होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड क्लॉज नंबर 2 इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1. उसी का एक पैरेलल हमने एक एक्सियम क्रिएट किया है. आप एक गुलाम है. क्लॉज नंबर 2 इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1. आई एग्री. सो हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम है वो गुलामियत की है. मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 प्रण लेते हैं और कहते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति. तो आप गुलामी के अंश कहाँ खोज रहे हैं? गुलामियत पूरी तरह से आपके ऊपर थोपी गई है. अभी जो मैंने एनालिसिस की वो गुलामियत नहीं है क्या? तो किस अंश को खोज रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी? किस अंश को खोज रहे हैं? उन्हें गुलामियत नहीं दिख रही है. मैथिली शरण गुप्त जो 37 साल जो है ना आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जो 7 साल डीजी रहे हैं, उन्हें तो हर जगह गुलामियत दिख रही है. यदि हमारे बाकी मित्र और बाकी जो है ना नागरिक यदि उसे नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे उनके ऊपर लज्जा आती है. अब आपने एक क्वेश्चन बीच में पूछा था कि ये तो सब समस्या हो गई, समाधान क्या है? तो हमने क्राइम फ्री भारत एक 5 सर्टेनिटी वाला
एक कॉन्सेप्ट नोट 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश भेजा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया, और आज ये नेशनल पुलिस मिशन है, बीइंग हेडेड बाय मी जी। इसमें 5 सर्टेनिटी हैं। पहली सर्टेनिटी कहती है certainty of registration of FIR, that too without going to police station, and if somebody lodges the false FIR, he will be prosecuted with the same proficiency under section 211 182 of IPC. Very good. That saves time of everyone. हाँ, because देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं, पुलिस का टाइम सेव करना नहीं है। पुलिस आपकी FIR दर्ज ही नहीं करेगी। पुलिस इज नॉट, आपकी पुलिस है ही नहीं, ये पुलिस तो नेताओं की पुलिस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, हमारा टाइम तो कितना सेव होगा। कितनी फेक FIR होती हैं, 80% तो फेक ही होती हैं। कुछ भी कोई भी सेक्शन डाल देते हैं कहीं भी जो मन आता है। बेसिकली हर काम पैसे लेके हो रहा है। जो सही FIR रजिस्टर हो रही है वो पैसे लेके रजिस्टर हो रही हैं, और जो फेक रजिस्टर हो रही हैं वो भी पैसे लेके हो रही हैं। तो जो पैसा दे पाता है या जिसके पास किसी लिंकेज है, नेटवर्क है, वो किसी से फोन करा सकता है, तो उसकी बात। ये सोचिए ना, इस चक्कर में जो ऑलरेडी जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है कि उनके जो है मैटर्स लगे, ऑर्डर्स हो, उनको रिलीफ मिले कोर्ट से, वो बेचारे तो, ये तो मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन कोर्ट और एडवोकेट्स के ऊपर भी तो है ना। करेक्ट। जिनको जो डिजर्विंग है उनको तो। Swati, sometime we will have a greater deliberation on this point. Now let's jump to the second certainty. The second certainty says the crime-free Bharat techno engine would be capable of locating wherever is evidence sitting. The evidence which are not being captured, they will be captured through the crowdsourcing, because we don't believe in the government, and that the content will never be with the crowd. It will be flowing to the cloud space, cloud server. You must have heard this terminology, and it would be in position to help the most ordinary police officer to collect infallible evidences and log them with the digital accuracy, with the date, time, location stamp, and with the hash value. So it has become virtually infallible in court of law, in the eyes of the law. And that challan will be created with all certainty within 15 days, failing which the person will be dealt very strictly. This is something great. Then third is a little more eye-opener. It says there will be court trial which will be much more transparent than whatever is happening nowadays, whatever drama happening. And court trial will be over through the distributed video-based trial system, and nobody need to visit court. So everybody would be operating from the convenience of their home, whether it's judge, his PA, defense lawyer, prosecution lawyer, victim, offender. Everybody would be operating from their own location. And but sir, it is going to be its own issues. Like we are working on VC, there are a lot of network issues, and then connectivity. Those are very small issues. Narendra Modi ji is already bringing the fiber to every place. If that is the priority, it could be done still with the greater veracity. But it is a very good idea. Like it is going to help the senior citizens and the women who cannot travel. Here I am only concerned that the justice must be delivered within the upper limit of the 30 days. And then the justice will be, whosoever is delivering justice is not the Lord. There will be two kind of the appeal. One appeal will be against the judgment, and another will be appeal against the judge. When somebody feels there were enough evidence and judge has deliberately ignored them, then judge to defend his own judgment, failing which he will lose his judgeship. He has to pay compensation also. I have created this. Then there is a fourth certainty, that is a certainty of the prevention through the digital Chitragupt. It is guaranteeing the right to privacy, and through the smart intervention process in the beginning, we may be in position to prevent 30-40% offenses, but within 5-year time, this accuracy will go to the 99%. In India, doing crime would not be an option. And when your digital Chitragupt knows so much, everything in 360 degree about all the criminals, then it is a bad strategy to allow them to remain criminal. So crime-free Bharat says that there is a fifth certainty of rehabilitation of the criminals. Sir, something similar is going on in US also. My friend told me this concept note has been submitted in 2017
It has been accepted by the government of India, and I am जो है the project head of this mission, but I am 200% sure it is not going to come. जहाँ राजनेता अपराधियों को प्रेफर कर रहे हो, नहीं आने देंगे सर, नहीं आने देंगे इनका। करेक्ट, दाल रोटी बंद हो जाएगी, तब जो मनमानी करते हैं बंद हो जाएगी तब। ये स्वाति उनके बस में नहीं रहेगा। मैथिली शरण गुप्त खड़े हो चुके हैं, हम इनको हरा देंगे। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल मॉडल। हमने एक खर्च विहीन व्यवस्था लाई है, क्योंकि मैं ये समझ गया हूं कि इतने धनी लोग हैं, ये इतने इनके खर्च के मॉडल से भी हम इनसे लड़ेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। देन आई क्रिएटेड ए मॉडल ऑफ द संयुक्त ऊर्जा। तो हमने अपना जो है ऐप भी लॉन्च किया है। आई एम ऑल ऑन ऑल सोशल मीडियाज, एंड जो अभी अपन बातचीत कर रहे हैं, दिस विल आल्सो बी अपलोडेड, राइट? दैट्स व्हाई आई टुक योर परमिशन इन द बिगिनिंग, राइट? दिस मॉडल सजेस्ट कि हर किसी को ऐप से जोड़ना है और उसे संकल्प लेना है। 9 दिन का संकल्प है केवल, राइट? 10-10 लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, उन सामाजिक संगठनों को, उन सामाजिक जहां से आप जुड़े हुए हैं, जिनमें इतने समय आपने कंट्रीब्यूट किया है, वेयर यू आर हैविंग पर्सनल फेथ। आपको केवल 10-10 लोगों को 9 दिन के को जोड़ने का संकल्प करना है, और जिनको जोड़ना है वो लोग होना चाहिए जो सिमिलर संकल्प लें। जो संकल्प ना ले उसे मत जोड़िए, क्योंकि हम जो है ये संख्या 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और 37 करोड़ लोग हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो लोग हैं जो आज की व्यवस्था में, जिन्होंने पार्टियां बना के रखी हैं, जिन्होंने समाज सेवी संगठन बना के रखे हैं, जिनका जो है राष्ट्रीय हित कोई दूर दूर तक ध्येय नहीं है, वो आज की व्यवस्था में खूब पैसे बना रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना के, सरकार का पैसा लेके, अनुदान लेके, ये करके वो करके, और उन्हें जो है इस व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था बदल जाएगी और सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे तो उनकी तो दाल नहीं गलेगी, राइट? सर तो मेरे लिए, मेरा भी यही सोचना है, सबसे बड़ा जो प्रेम है ना वो राष्ट्र प्रेम है, और आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन वो राष्ट्र हित में ही होना चाहिए। स्वाति, आई एम गिविंग यू द मॉडल कि वो आप राष्ट्रीय प्रेम से जुड़ भी सकते हैं, आपको कोई खर्च भी नहीं करना है, आप किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी कंडक्ट रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, आप चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, धरना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोई भी बदलाव आंदोलन धरना से नहीं आएगा। आंदोलन धरना से नेता पैदा होंगे, देशद्रोही पैदा होंगे, जो अपनी जो है ना इच्छा को पूरा करेंगे। इस देश में बदलाव नहीं आएगा। इस देश में बदलाव आने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि नॉन रिवोल्यूशनरी है। बाय इधर जो है योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड डू एज पर योर जो है रिक्वायरमेंट, विच दे आर नॉट गोइंग टू डू, देन यू डिफीट देम विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। सो दिस मॉडल इज जी सर, जो आप मुझे बता रहे थे ना वो चित्रगुप्त वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें क्रिमिनल का रिकॉर्ड आएगा, समथिंग सिमिलर हैपेंस इन यूएसए। वहाँ पे इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है। उसका ड्राफ्ट मैंने सितंबर 2020 में भारत सरकार को भेजा है, जो कि राइट टू प्राइवेसी भी देगा। तो राइट टू प्राइवेसी, नॉट टू कमिट द क्रिमिनलिटी, द मोमेंट यू विल कमिट। क्या है ना, दे हैव सम पोर्टल, अगर वहाँ पे नेम डालो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है। ये इंसान क्रिमिनल है। जो यूएस सोच रहा है ना, उससे हम 100 कदम आगे हैं। हम सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कंटेंट से एफआईआर भी करेगी बिना थाने जाए। वो जो है ना पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने में भी मदद करेगी। 15 दिन में चालान भी पेश कर देगी, 30 दिन में जो है ना उसमें जो है ना सजाए अभी भी सुनिश्चित कर देगी। और फिर जो है स्मार्ट इंटरवेंशन से हम प्रिवेंशन भी कर पाएंगे। और हम अपना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो फेक एफआईआर होंगी उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई है, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। देखो स्वाति, मैं इसको इस ढंग से कहूंगा कि देखो भगवान तो वही है, चाहे उसे पत्थर मानो या भगवान मानो। तो कहा गया है कि जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इस कॉन्सेप्ट में हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई चीज अच्छी पाएगा। जैसे आपने जो है ना एक अच्छी चीज पाई कि लोग गलत एफआईआर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना सर, प्रॉपर्टी के लिए कितनी सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है और कितनी गंदी गंदी एफआईआर आपस में करते हैं।
उससे किसका बर्डन है? सबको पता है यहाँ पे कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो रहा, कोई रेप नहीं हो रहा, कोई पॉक्सो नहीं हो रहा, बट वो कर रहे हैं। किसी को फार्म हाउस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और एवरी सेकंड डे। हर कोई उस लूट में अपने हिस्सा भी ले रहा है, हाँ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पुलिस वो वाले अपना मजिस्ट्रेट शेयर हो। ले रहे हैं। हम मजिस्ट्रेट भी ले इतने रहे हैं। पैसे दो, हम ये सेक्शन भी डाल देंगे, इतने पैसे दो, हम वो डाल देंगे, ऐसे ही तुम्हारे बयान हो रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, और सारा बर्डन आता है हमारे कोर्ट्स के ऊपर। और देखिए, जो एडवोकेट्स हैं, जो मेरे जैसे नहीं है, उनके लिए अच्छा, उनको काम मिल रहा है। भाई सही आओ गलत आओ, क्या है, केसेस आ रहे हैं, तो मैं पैसे तो देते आपको रहो। इतना काम दे दूंगा कि हम्म। वकील कम पड़ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि हम तो समग्र सोच रहे हैं ना, जी। हम तो किसी एक के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, देश के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो क्राइम फ्री भारत में बहुत सारे मिशन ऑब्जेक्टिव रखे हैं। एक रखा है अपराध मुक्त भारत, जिसकी हमने 5 स्ट्रेटेजी बताई हैं। इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी हैं, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी पावरफुल होंगी कि भारत जो है ना बिना टैक्स के जो है ना रन कर सकता है, और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा भी मिलेगा। ये सर विजन बहुत अच्छा है आपका, और आपने बहुत ज्यादा प्रोफाउंड आपने रिसर्च कर रखी है, क्योंकि आपके पॉइंट्स बता रहे हैं, द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड। मुझे लगता है बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं इस पर, और मतलब ये आपके सालों का वो है बेसिकली आपने बिल्कुल निचोड़। सही कहा कि ये तपस्या है, और ये तपस्या का निचोड़ है। जैसे हम जब पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ती थी मैं, तो मुझे माय फादर टॉट मी हाउ टू मेक सिनॉप्सिस, हाँ हाँ। कि ये पॉइंट है, इसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं। तो वो मुझे पढ़ाते थे कि कैसे इतना बड़ा आंसर को लर्न कैसे करना है, छोटा कैसे कर दें अपने थॉट में, कि याद हो जाएगा वेरी हर ट्रू, चीज। वेरी ट्रू तो सर। दिस इज व्हाट यू हैव मेड, यू हैव मेड अ कंप्लीट सिनॉप्सिस कि ये है प्रॉब्लम, और तो ये स्वाति ये सॉल्यूशन। समझाएं कि एनर्जी मॉडल आपकी कैसे मदद करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली समस्या का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, समाधान आवश्यक है, और वो जी समाधान भी बिल्कुल। खर्च विहीन होना चाहिए। नहीं तो आप पुनः एक और गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल बना है। तो इस मॉडल में ये है कि हम सब लोगों को शपथ लेना है, संकल्प लेना है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ये जो बातें हैं। हमारा क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें 1400-1500 वीडियोज हमारे अपलोडेड हैं। तो जो अच्छा लग रहा है उसको आप शेयर करिए, बात करिए, और संकल्प दिलाइए। और हमें अपने घर से शुरू करना है, तो अपने घर वालों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। अपने ब्रदर को जोड़ा है मैंने, वो भी लॉ स्टूडेंट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो पांडे जी हैं, उन्होंने ही टोल्ड मी, आपके लिए बता रहे थे दैट यू वांट टू टॉक टू मी यस्टरडे। तो कह रहे थे आप इसमें एक्टिव नहीं है। मैंने कहा मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, मेरी डॉटर भी है एक्चुअली, इसके बोर्ड हैं 10th के। तो आप समझ सकते हैं, देखिए क्लाइंट्स भी, फिर डॉटर भी है, और वो मिस इंडिया जीती थी लास्ट ईयर। ओह वाओ वाओ। जी सर, मिस टीन इंडिया। और वाओ 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 वाओ। इस ईयर भी फिल्म फेयर जीता है उसने, क्वीन ऑफ वाओ वाओ वाओ। कन्वे माय ब्लेसिंग टू हर। जी, खुशी इज हर नेम। और अभी कल स्कूल में वाइस हेड गर्ल भी बनी है। ओह ग्रेट 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 ग्रेट। शी इज अ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट गर्ल। आई कैन सी दैट। हाँ जी, आई विल शेयर इट विद यू। एंड जो है मतलब उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मैं वर्क कर रही हूँ, तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है मेंटली। तो देखो हर चीज के लिए काल और समय होता है, राइट। हमें ये एनर्जी 9 दिन में हो सकती है, और यदि कुछ लोगों में कम एनर्जी है तो इसके 3 मॉडल हैं। एक तो मॉडल ये है, और हर में 9 का अंक मूल अंक है। एक है कि 10-10 लोगों को आप जोड़िए 9 दिन तक, और जिन लोगों को आप जोड़े उनको संकल्पित करिए, और 9 दिन के बाद आपका काम है कि जिनको आपने जोड़ा है वो अपने संकल्प का पालन करें, उन्हें याद कराएं, और वो संकल्प पूरा करें। और उसमें जो है ये चीज ध्यान रखना है कि जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं। जैसे ही महसूस करो कि एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है ना, आजकल ज्यादातर तो भक्त बने हुए हैं। जो भक्त हैं, आप भक्तों की चिंता मत करिए। आप हम किसी की बुराई कर रहे हैं क्या? हम तो सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जितने भक्त वो है उससे ज्यादा भक्त मैं हूँ मोदी जी का, ठीक है ना सर। मैं आपको बताऊं एक बात, बात ये होती है, भक्त इज इक्वल टू देशभक्त। ये आजकल एक फंडामेंटल बन गया है कि जो अगर आप कंट्री से प्यार करते हो तो आप एंटी बीजेपी कोई बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। मुझे बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही है ना, देखिए हम फैमिली में भी रहते हैं, हमें 4 बातें नहीं अच्छी लगती तो हम कहते हैं ना। ये थोड़ी मैं तो बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो आपको कह रहा है कि हम राष्ट्रीय हैं, हम हिंदुओं के बहुत बड़े मसीहा हैं, वो हिंदू के फेवर में तो 5 काम नहीं कर रहा है।
वो सिर्फ जो है ना दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है। नहीं तो मैंने तो बताया है कि आप बताइए वर्षिप प्लेसेस 1991 को जो है ना रिपील क्यों नहीं किया? जब आपने 370 को हटाया तो आप एक डोमिसाइल पॉलिसी ऑफ द सिमिलर लाइन क्यों लेके आए हैं? आपने जो है ना डिमोनेटाइजेशन किया। हमने एज ए सिटिंग डीजी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, सिटिंग डीजी चिट्ठी नहीं लिखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन मैंने लिखी। मैंने 17 पॉइंट की चिट्ठी लिखी। एक छोटा सा पॉइंट उसमें ये था कि एक्सचेंज का ड्रामा बंद करिए, और वैसे भी आपने सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, कुछ रह गए हैं तो उनके अकाउंट खोल दीजिए, और सब लोग अपने अपने जो है अकाउंट में पैसा जमा कराएं, और विड्रॉ जो उनको करना हो वो करते रहें। मतलब जितना आप परमिट करोगे उतना ही विड्रॉ कर पाएंगे वो। और आप पीओएस, क्रेडिट कार्ड इन सबको कर दीजिए तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लाइन नहीं लगेगी। और जो है पहली बार में यदि कोई जमा नहीं करा पाता है तो वो दूसरी बार भी जमा कर सकता है, तीसरी बार जमा कर सकता है, बट ही हैज टू राइट द रीजन कि क्यों नहीं कर पाया, राइट? अब जो भी करोड़ों रुपए जमा हुए आप ऊपर से शुरू करिए। एक जो है ना ब्लैकमेल वाला नहीं बचता, एक काला धन वाला नहीं बचता, लेकिन ये काला धन की के विरुद्ध स्कीम थी ही नहीं। ये तो बाकी चीजें कहीं जस्टिफाई करने के लिए कही गई। स्कीम तो ये थी कि नेताओं के पैसे कैसे ड्राई हो जाएं जिससे हम यूपी का चुनाव जीत जाएं, जो जीत गए वो। इट वाज ए वेरी। सर कॉमन मैन को क्या फायदा हुआ इसका? तो आपके फायदे के लिए वो बनाए, आपके फायदे। जी आई टोटली एग्री, उसको कोई कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ परेशान हुए, दुनिया भर की प्रॉब्लम हुई। हम जो है यदि फायदा होता तो हम परेशानी के लिए भी तैयार थे। आपकी नीयत साफ नहीं थी। नहीं तो एक सिटिंग डीजी जो है ना आपको लिख रहा है, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात कर रहा है, इसके बावजूद भी यदि आप उनको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका ध्येय कुछ दूसरा है। तो यही तो हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप ध्येय भर का काम नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आपने बर्डबो एक्ट को जो है ना रिपील किया क्या? अंग्रेजों ने तो जो है ना उसे जो है ना बांटने के लिए बनाया था। आपने जो है क्या मैंने माइनॉरिटी कमीशन को बंद किया क्या? आपने क्या जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बंद किया क्या? ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? सर बेसिकली द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द वेलफेयर ऑफ द कॉमन गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू स्टे इन पावर्स बाय बिफूलिंग इंडियंस। और वो जो है ना जो मैंने कहा है कि आप गुलाम हैं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन टू प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। सर एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, जनरली घर में भी, बाहर भी, कोर्ट में भी, कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम खुद के ही गुलाम हो गए हैं। आप खुद के गुलाम नहीं हैं, आप ये जो है भ्रष्टाचारी। नहीं सर हैं, बताऊं क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अब हम किन चीजों में उलझे हुए हैं? हिंदू, मुसलमान, वो तो उलझना है। गुलाम तो हम इन राजनेताओं के हैं। नहीं, वो है उलझना, वो है व्यथित होना, वो है व्यस्त होना। क्योंकि हमें जो है ना ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है कि हमें इन चीजों से लड़ना ही पड़ेगा। यदि आप जो है ना बेकार से जो है ना टैक्स लॉज बनाएंगे तो हमें अल्टीमेटली आई हैव टू जो है ना फाइट विद इट, आई हैव नो ऑप्शन। तो हमें तो जो है एक बात पे मैं यहाँ पे एग्री नहीं कर रही आपसे। कि सारी गलती उन्हीं लोगों की थोड़ी है, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें ये तो कह रहे हैं आपको नहीं पता है। आपको जब तक मैंने नहीं कहा और कोई तो मुझे कहता नहीं मिल रहा है कि आप गुलाम हैं, क्योंकि कानून गुलाम है। मुझे तो एक व्यक्ति भी कहते नहीं मिल रहा है जो बात मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं इस बात पे हमेशा से बिलीव करती हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, बिलीव करना अलग बात है। आप मुझे अपना एक नरेशन भेज दीजिए जिसमें आपने यही बात कही है जो मैंने कही है। नहीं सर, मैंने ऐसे नरेशन नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको अपना थॉट बता रही हूँ कि सारी गलती हम दूसरों के ऊपर नहीं। आप एक बात बताइए, सुनिए तो सुनिए। एक पॉलिसी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो अपनी मेरी सोच है। एक पॉलिसी बनी भाई कि अपने साफ सफाई रखें, नीट एंड क्लीन रखें अपनी सराउंडिंग्स। पॉलिसीज तो बनती जाती हैं। जब तक हम खुद अपने आप में कोई चेंज नहीं लाएंगे, लड़कियों को लेके भी देखिए, आप पढ़ाई को लेके उनकी जल्दी शादी करनी। आप ये बताइए कि हम स्वच्छ रहेंगे तो क्या गुलाम नहीं होंगे? क्या गुलामियत की व्यवस्था नहीं रहेगी? तो आप स्वच्छ रहिए लेकिन आप गुलाम बन के रहिए। आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिसी बन गई, उसको अगर हम अपने घर को के आसपास सफाई रखेंगे, वो कोई पॉलिसी थोड़ी हमसे करवाएगी। कुछ तो हमें खुद को भी करना पड़ता है ना। चलिए इन मुद्दों पे अपन और आगे बात करेंगे। अभी जरा वो एनर्जी मॉडल को फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना? तो यदि जैसे एज्यूम करिए कि आज यदि हम एनर्जी मॉडल को चालू करते हैं और हमने आज 10 लोगों को जोड़ा, राइट, और उनको यदि हमने सही मायने में संकल्पित किया और हमने ध्यान रखा कि जो पत्थर 1 और पत्थर 2 कैटेगरी हैं, जो बहुत विद्वान है लेकिन वो आज की व्यवस्था से भर भर के लाभ कमा रहे हैं, उन्होंने जो है ना समाज सेवी संगठन सब लाभ कमाने के लिए किए हुए हैं, उन्हें आपके इस मॉडल में कोई रुचि नहीं है। वो आपके लिए, उनकी विद्वत्ता आपकी किसी काम की नहीं है, वो आपके लिए पत्थर तुल्य हैं। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि पत्थर है तो उनको किनारे कर दीजिए। अच्छा, आपसे बाद में बात करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो जुड़ जाइए, नहीं तो आप बाढ़ में जाइए, ठीक है ना? क्योंकि दैट विल अननेसेसरी डिप्लीट योर एनर्जी
एंड वो दोज बगर्स, वो पत्थर हैं, वो बदमाश हैं, वो मक्कार हैं, वो इंटेलेक्ट हैं, उन्हें उन्हें जो है ना ज्ञान की कमी नहीं है। वो विद्वत्ता को आपको जो है ना कुरेदने में, आपको जो है ना आपके विरुद्ध काम करने में यूज करेंगे, हाँ ठीक है आपको सपोर्ट सर, में नहीं। मैंने 8-10 लोगों में ये शेयर किया था ज्वाइन करने के लिए एक मिनट, एक मिनट, स्वाति, अलाउ, आई विल टेक ए मिनट मोर सो दैट फिर देन वी विल हैव ए डिस्कशन, राइट? सो बेसिकली यदि हम आज शुरू करते हैं तो आज हम 10 हो जाएंगे, और वो संकल्पित हैं तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, यदि वो संकल्पित हैं तो हम तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन जो है ना हम 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन हम 1,00,000 हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे, और नौवें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और 37 करोड़ लोगों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो पत्थर 1 और पत्थर 2 है। ठीक है ना? क्वालिटी ऑफ पीपल। नहीं, आप तो सभी को जोड़ो, वो सिद्ध करे कि वो पत्थर है, आप क्यों चिंता करें? अच्छा, नहीं समझे ना? आप जोड़िए। पूछ रही थी मैं आपसे कि जिनको मैंने देखिए, आप तो जो है, आप तो हर किसी को मौका दो, जैसे ही आपको महसूस हो। तो पत्थर 1 तो हमने वो बता दिए जो बहुत विद्वान हैं, अपने लाभ के लिए जीते हैं, उनकी विद्वत्ता उनके अपने लाभ के लिए है। उन्होंने समाज सेवी संगठन भी खोल के रखे हैं, उन्होंने एनजीओज भी खोल के रखे हैं, और अनुदान से लेके मूर्ख बना के ढेर सारा वो रोज लाभ कमाते हैं। वो इसी के सहारे जी रहे हैं। उन्हें इस व्यवस्था को बदलने में कोई ढेले भर की रुचि नहीं है, राइट? दूसरे वो लोग हैं जिस व्यवस्था से त्रस्त रहे हैं, और उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि ये दुष्ट व्यवस्था उनका भला नहीं करने वाली है, ये दुष्ट राजनेता उनका भला नहीं करने वाले हैं, और वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते हुए पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें आप कोई भी अच्छी बात करेंगे तो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके अनुभव इतने खराब हैं कि भाई ये चीज ऐसे 9 दिन में कैसे हो जाएगी भाई। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, आप कुछ भी कह लीजिए। आप सर, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी, और जिनको आएगी वो समझना कहीं नहीं चाहेंगे। आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी, जब आपकी जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा है, आप कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, किसी आचरण उसका वो नहीं कर रहे हैं, तो भाई साहब ट्राई करने में क्या दिक्कत है? हम आपको सर, वन रिक्वेस्ट, जो आप ना मुझे एक वो भेज दीजिएगा पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि हम इसको क्यों ज्वाइन करें, ये क्या है। तो सर मुझे अच्छा, उनको ये बताइए कि क्या आप गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या जो है ये जो आपको ऊपर जो व्यवस्था थोपी गई है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं? और यदि वो बिना खर्च के, तो यदि आप नहीं जुड़ना चाहते तो हम आपको इमीडिएटली आप बता दो, पत्थर 1 हो या पत्थर 2, हम आपको बाहर करना चाहते हैं। नहीं सर, आपने कुछ प्रिपेयर किया होगा ना, आपके पास कुछ होगा ऐसा विच आई कैन सेंड टू देम, जो आस्क। ये जो हमने आपसे बातचीत की, इसी को शेयर करो ना, दे विल हियर इन योर वॉइस। क्या दिक्कत है? अभी कल तक ये अपलोड हो जाएगी, आई विल शेयर विथ यू, और आपको हम लिंक भेज देंगे, तो आप उसको, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है वो तो मैंने देख ही लिया है। मैंने तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, आई थिंक कई महीने हो गए हैं, अभी तो 3 महीने हो चुके। अब जो है 9 तारीख को हमने प्रण लिया है कि जो इनएक्टिव मेंबर्स होंगे उनको बाहर निकालेंगे। खैर नहीं भी, आपने तो ऑलरेडी इतने लोगों को जोड़ लिया है, तो यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव। जिनके 0 मार्क्स होंगे दे विल बी ऑल रिमूव्ड ऑन द 9th of September। क्योंकि पत्थरों को जो नहीं झेलना है, क्योंकि फिर वो आपको देखेंगे, आपके लोगों के नंबर पढ़ के उनको उल्टा बरगलाएंगे, तो उनको ये काम क्यों करने दिया जाए? एक दुष्ट जो था मुकेश मिश्रा, तो कहने को पत्रकार था, अपने आप को एडवोकेट कर रहा है, वो ऐसे ही दुष्ट था। वो जो क्राइम फ्री भारत में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको फोन लगा के उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग ही भेज दी मेरे पास, कदे को साहब ये बातें कर रहा है मुझसे। तो he got exposed, I immediately deactivated them। तो ये दुष्ट लोग हैं, मतलब जो हर संगठन में, हर जगह। एक संगठन हमने एडवोकेट्स ने बनाया, 2020 में बनाया था, राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, नेशनल एडवोकेट फोरम। तो हमने इसमें मतलब 5 ट्रस्टीज लोग थे, सर लोग थे, और उसमें उन्होंने मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया, राष्ट्रीय महामंत्री। हाँ, मैंने देखा आपके उसमें था। तो ये जो है अब तो 3 साल हो रहे हैं उसमें। तो मैं आपको बताऊं, वी स्टार्टेड विद आई थिंक 10-15, और आज की डेट में 9000 हो गए हैं। कोई ऐसी स्टेट नहीं है सर इंडिया में जिसमें मतलब क्वालिटी एडवोकेट्स वी हैव इन द ग्रुप, और उससे हमें इतना बेनिफिट मिलता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा इसमें क्राइम फ्री भारत मिशन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, हमें तो हर आम आदमी को जोड़ना है, बस वो केवल पत्थर 1 और पत्थर 2 नहीं होना चाहिए। उसकी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, उसकी विद्वत्ता का ठेका तो मैथिली शरण गुप्त ने लेके रखा है ना। नहीं सर, थोड़ा नहीं सर, बहुत फर्क है। एक जो है विजन ही अलग है ना, एक पर्सपेक्टिव, विजन और मोटिव ही अलग है। वो एडवोकेट्स के लिए बना हुआ है, दिस इज फॉर एवरी सिटीजन।
बिल्कुल जो भी बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी समझे देश जो के। जिम्मेदारी समझे और अपने आप को पत्थर माने तो हम तुमको किनारे करने के लिए तैयार है। तुमको हम महान नहीं मानेंगे, तुमको एक घटिया इंसान मानेंगे। हम्म क्योंकि ये जो जो अपने आप महानता का लवादा लोड़े हुए वो महान नहीं है, उन्हीं के कारण हमारी ये दुर्गति है। हम्म ठीक है ना। तो अब ये बताइए, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो रहे हैं और 100 करोड़ लोगों को अपनी बात को इजहार करने का पहला मौका जो है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट क्यों ना करते हो, वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम उनको पराजित करेंगे। और पराजित करने के लिए कहाँ से आदमी आएंगे? तो जो ये लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके ऊपर प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं, हर दिन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वो मैं उनके नंबर देख के उन्हें वैसी जिम्मेवारियां बांटता रहता हूँ। कोई किसी को मुझसे आवेदन नहीं करना पड़ता है। आपकी जो प्रतिष्ठा पॉइंट है उसके ऊपर हमने अभी कल 2 लोगों को नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनाया है। जस्ट उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा, लेकिन हमने देखा कि दे हैव क्रॉस द 10,000 वो, तो हमने उनको जो है ना नेशनल बना दिया। बहुत सारे लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको जो है ना स्टेट लेवल का कर दिया है, अभी कुछ ब्लॉक लेवल वाला कर दिया है, हम मोहल्ले वाले पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं। सो जिसमें एनर्जी होगी, अब ये सोचो कि एक व्यक्ति, देखिए हमें उससे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मतलब टू बी वेरी ब्लंट, राइट, हमें चंद्रगुप्त की जरूरत है। चाणक्य के रूप में तो मैंने अपने आप को स्थापित कर लिया है ना, जिसने टेक्नोलॉजी भी बनाई है, कानून भी बनाया है, पूरे मॉडल भी बना लिए हैं, तो अब उन मॉडल को तो रिफाइन ही करना है और कुछ तो करना नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, आई एग्री। कुछ बातें तो बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इसमें हमें बहुत विद्वान लोगों की जरूरत है नहीं, क्योंकि उस विद्वत्ता को का ठेका लेके और सही तरीके के लोगों को जोड़ के जो मॉडल बना है उसको और रिफाइन करने का तो जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त ने ले ली है। तो अब हमें कौन से लोग चाहिए जो एनर्जी के साथ जुड़ के लोगों को 100 करोड़ लोगों को जोड़ ले, और जो जब कहा जाए तो थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कहें कि तुम जो है ना सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, यदि नहीं करोगे इस समय तक तो हम तुम्हें पराजित कर देंगे। और ये बताइए जो किस तरीके से जीतते हैं, इस बारे में अभी अपन ने विस्तृत चर्चा की है कि नहीं की है? क्या वो लोग जो है जो इतने छदम तरीके से छदम हथकंडों के तहत जीतते हैं, क्या वो सच्चे मन से निकला हुआ संकल्प कुछ से क्या वो लड़ पाएंगे? और जब मैथिली शरण गुप्त साथ में ये भी कह देंगे कि फ्री भी बांटने आए तो ले लो, दारू बांटने आए तो ले लो, पैसे बांटने आए तो ले लो, साड़ी बांटने आए तो ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा ही पैसा है, लेकिन वोट उसी को दोगे जिसको संकल्पित है। तो ये क्या, इनमें से अधिकांश राजनेता जिनके पोशाक को छोड़ के हर चीज काली है, जिनकी सोच काली, नियत काली, ध्येय काला, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग क्या इस संकल्प से लड़ पाएंगे? आपका क्या सोचना है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा है कि मैथिली शरण गुप्त अपने दहरी के बहाल रोड पे नहीं निकलेंगे, कम से कम हम आह्वान नहीं करेंगे। आपने आह्वान किया, आपने जैसे एडवोकेट ने कोई फंक्शन किया, मैं पहुंच जाऊंगा उसमें, राइट, लेकिन मैथिली शरण गुप्त अपने आह्वान पे किसी को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने खर्च रखा तो फिर हम वही चाल चलेंगे जो ये लोग चल रहे हैं, और यदि इनकी चाल से खेलेंगे, यदि हमने शतरंज के नियम अपने नहीं बनाए तो हम दूसरे गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त विल बिकम अनदर अरविंद केजरीवाल, which I will not allow it to happen। नहीं सर, ठीक है, आपका अपना जो है आउटलुक है, आपने अपने हिसाब से हर चीज जो बनाई है अपनी रिसर्च से, दैट इज गुड कि आपने अपने अंदर की आवाज सुनी है, उसके ऊपर आप उसको कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो सर अच्छी बात है, जो जुड़ना चाहेगा, जो अग्री करेगा थॉट से, वो करेगा। नहीं देखिए, यदि आप संकल्पित हैं, राइट, तो आपको 90 लोगों को जोड़ना है और आपको अपने घर से जोड़ना है, तो 5-6 सदस्य तो घर के ही हो गए, राइट, और उनकी जो है ना, यदि मान लो लड़का है तो उसकी बहू हो गई, ये हो गए, वो है, कुल मिला के तो 8-10-12 सदस्य तो हो ही जाएंगे ना। हो जाएंगे। I will try to add as many as I can। हाँ, और लेकिन उसी को जोड़ना जो संकल्पित हो, और यदि जो आपको लगता है कि जुड़ तो गया है लेकिन अपने संकल्प की जो है ना मर्यादा नहीं रख रहा है, आप मुझे रिकमेंड कर देना कि ही शुड बी रिमूव्ड। डेफिनेटली। क्योंकि यदि मैं तुम्हारे बिना अप्रूवल के उसको वो करूंगा तो आप हर्ट फील करेंगे, तो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है ना। तो स्वाति, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी ये वार्ता जो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी कल तक, और इस वार्तालाप को फिर आप बाकी लोगों से शेयर करिएगा
ये अपने ऐप पर भी अवेलेबल होगी और 2024 में मैं आपको गारंटी देता हूं इस देश को बदल देंगे। सर बहुत अच्छी बात होगी वो जो क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि समस्याएं हैं देखिए वो बहुत क्योंकि जरूरी क्योंकि है कोई कि उनका मॉडल कुछ लेके नहीं निवारण हो। आया है। देखिए ये बात मानते कि नहीं मानते हैं, हम समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम समाधान के बारे में बात कर रहे हैं और अधिकांश समाधान की डिजाइनिंग भी हम ही कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे लॉ हो। हमें आपके लॉयर से बहुत काम है। मुझे ढेर सारे ड्राफ्ट कानून बनाना है जिससे 2024 के बाद का समय सेव हो। 2024 के बाद सिर्फ उसके रिफाइनमेंट का काम होगा, राइट। और उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो उसको चेंज कर देंगे। आज की व्यवस्था जो गुलामों वाली व्यवस्था वो कौन सी अच्छी है? गलती होगी तो 2 मिनट में रियलाइज हो जाएगी। बिल्कुल सर, करेक्शंस तो हमेशा ही होती ही रहती हैं सब जगह। हाँ, उसके लिए बहुत जो है ना वो नहीं करना है। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सफेद वर्दीधारी लोग हैं जिनके वस्त्रों को छोड़कर कोई भी चीज सफेद नहीं है, ये दुष्ट काले लोग इस देश के लिए गंदी नाली के कीड़े बन गए हैं। ये यदि हम इन्हें देशद्रोही कहें तो बहुत गलत नहीं होगा। सही बात है सर। डू यू एग्री? आप हमें जो है ना थोड़े से रफ वर्ड, क्रूड वर्ड को यूज करने में के लिए क्षमा करेंगे। नहीं सर, आप अपने व्यूज दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। जी जी। और सबको राइट है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स। आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बाकी आपके विचार। मैं किसी व्यक्ति की विशेष की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ। ये तो आपके थॉट्स हैं और आपका अपना जो है रिसर्च है। और कई बातें देखिए, कई बातों से मैं अग्री कर रही हूँ, कुछ बातों से नहीं कर रही हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है मेरी, तो मुझे आप वो भी भेजिएगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना ये किस लिए है, क्या है। तो इट्स बेटर रादर उसको लिए जानते क्या करिए आप, जो है आपने यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे कर लीजिए, राइट। और उसके जब भी समय मिले तो कुछ वीडियो ऑडियोज को सुनिए आप। सर देखूंगी सर, मैं ये कह रही हूँ हर एक से बात करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता ना, थोड़ा टाइम ये जो है इसकी मूल भावना के विरुद्ध है। मूल भावना कह रही है कि आपको 1 to 1 बात करना पड़ेगा, जैसे मंत्र देते हैं ना, ऐसे ही बात करना है, क्योंकि वो ऊर्जा है। आप उससे फिर वो संकल्प कैसे? आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लोगों को इन्विटेशन भेजी, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से सिर्फ 20 हैं जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं। करेक्ट, तो उन 20 से बात करना है आप। उन 20 को मैं कोई चीज ऐसी सेंड करूँ बेसिक कि भाई वो पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो देन आई टॉक टू देम। उनसे ये कहो कि इसमें चीजों को सुन लो, यदि तुमको अच्छा लग रहा है तो हम आपसे बात करेंगे, ऐसा। हाँ जी, यही तो वही अगर कोई वीडियो है, इसमें बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपके इसी में देखेंगे ना आप एडम पोस्ट में देखो तो ढेर सारे वीडियोज हैं, कंटेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। 1500 के लगभग वीडियोज हैं। और वो हर पॉलिसी के बारे में है कि फार्मर्स को हम कैसे रिच बनाएंगे, हम गरीब लेबर्स को कैसे धनी बनाएंगे, हम जो है जो डिस्टॉर्शन है सोसाइटी के वो कैसे दूर करेंगे, साइबर क्राइम कैसे करेंगे, टैक्स फ्री कैसे करेंगे भारत को, और सबसे बड़ी बात है कि पेपर करेंसी फ्री कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर करेंसी ही इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप इमेजिन करिए कि यदि पेपर करेंसी को हम खत्म कर देते हैं तो क्या कोई हवाला होगा? क्या कोई भ्रष्टाचार करना संभव होगा? क्या इट विल बी ट्रैक्ड विद द डिजिटल एविडेंस एंड द पर्सन विल बी सड़ जाएगा 45 दिन में जेल में। सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा? हाँ। और ये विद्वान लोग जेल में सड़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं है, तो ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भारत अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आपसे 5 पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, नंबर 1। आपसे कोई नियम कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको आपके घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो फिर इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं? इन काले जो है अंग्रेजों को, इन सपोज पेश जो है ना काले चरित्र के लोगों को जो ना वोट दे दो, आप 2 बार भी नहीं सोचते हैं। तो फिर इस बारे में इतना क्यों सोचना? चलो ट्राई करके देखते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं? आप किसी को कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्या? नहीं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? सही बात है सर, फ्री है और आप ट्राई करके देखो भाई कि इसमें क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ आपके भी थॉट्स हो, आप भी दे दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्या पता आप भी कोई अच्छी चीज ऐड कर दें। तो जैसे हमने आपसे भी पूछा ही ना कि मैंने आपसे पूछा ना कि वुड यू लाइक टू मेक वैल्यू एडिशन, देन आई सेड कि ठीक है आप सोचो, और उसके बाद आपको कुछ वैल्यू एडिशन समझ में आए तो भी वी कैन डेलिब्रेट एट द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आल्सो।
तो वो ये वही सोच का हिस्सा है. आई एम वेरी श्योर. हाउ मच एनर्जाइजिंग यू फाउंड दिस टॉक विच वी हैड? Sir, a lot. And sir, I'll research more and will think more, and if I have some suggestions. सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपना कुछ जान नहीं रहा है तो भाई वी शुड नॉट गिव इट ए ट्रायल. अब ये हम ये कह रहे हैं कि जो हम दूसरी चीजें चारों तरफ दुष्टता हो रही हैं उनको तो झेल रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं. एक अच्छी चीज है तो उसमें पूरी रिसर्च हम आगे करते रहेंगे. सर, ब्यूरोक्रेट्स की भी जहाँ तक हम बात करें, IAS IPS की, तो सर कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है आपसे बेटर कौन जानता होगा. छोटी छोटी बात पे कभी ट्रांसफर, कभी एक काम, जो काम सही होना है वहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, अब ये प्रेशर व्रेशर से हम बाहर पहुंच गए हैं. अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गए हैं. वो आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखें. ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं. पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अब कुछ बचे नहीं हैं. ये इनके सर, मैं अपने फादर के टाइम की बात कर रही हूँ. तो मैं उस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स लुप्त हो चुके हैं. मैं वही कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे नहीं हैं जो कुछ अपने तरीके से काम करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत आता है. नहीं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता है. मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो है CM के जिले का SP भी रहा हूँ और CM के छोटे भाई का ट्रैफिक का चालान हुआ है. क्या कैन यू बिलीव इट? ट्रैफिक का चालान. आई कैन बिल्कुल. क्यों? सर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर होता है, बट ये है ना कि जिसके ऊपर आज तक जो है 37 साल की नौकरी में किसी राजनेता का सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई है. हमने नहीं माना हो वो दूसरी बात है. तो वो स्थिति ही निर्मित नहीं हुई. जब किसी ने सिफारिश ही नहीं की तो मानने ना मानने का सवाल कहाँ उठता है. तो आपको अपना कद इतना करना पड़ेगा, जो कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है. सर, बट ऐसा होता है, सिचुएशंस बनती हैं, बट आप उसको ओवरकम कर लेते हो. वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है. देखो एक बड़ी चीज है, आपने सोच समझ के कोई अपने लिए निर्णय लिया है, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यदि आप तैयार हैं तो आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है. बिल्कुल. और ये छोटे चरित्र के लोग आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फिर वो उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा. तो ये छोटे चरित्र के लोग हैं, यदि आप ये मान पाए. लेकिन हमारे में से अधिकांश लोग तो इनको विधाता मान लेते हैं. अरे भाई, ना इनकी शिक्षा है ना सोच है, काय के विधाता हैं. बिल्कुल. जिनके जो है सफेद कपड़ों को छोड़ के बाकी और कोई चीज सफेद नहीं है. तो आप बताइए ये काय के महान है? नहीं, आप इन्हें महान कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं है. तो फिर हम इनको जो है ना महान जैसा क्यों बना रहे हैं, देवता जैसे क्यों बना रहे हैं, इनके दरबार में क्यों खड़े हो रहे हैं, इनके प्यादे क्यों बन रहे हैं अपन? सर, यही तो मैं बोल रही थी आपको थोड़ी देर पहले कि सारी गलती उनकी नहीं है जो पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं. खुद की भी गलती है लोगों की. हम लोग जो है पेट पालने के लिए इतने जो है ना व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपना विवेक खो दिया है. इन्होंने हमको ऐसा चाहते कि ये पहले जो है एक व्यक्ति कमाता था, अपने पूरे कुनबे को पाल लेता था. आज मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं और अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पाते हैं अच्छे ढंग से. तो ये इन्होंने आपके चारों तरफ टैक्स सिस्टम से लेके ये करके वो करके आपको ऐसा जो है ना फंसा लिया है, जहाँ पे हर चीज फ्री है. नेचर ने क्या चीज आपकी वो की है? क्या आपका अनाज पैदा करने के लिए भगवान आपसे पैसे मांगता है क्या? उन्होंने गाय का गोबर दे के रखा है, जिससे कि आपके जो है ना फसल की पैदावार, जो आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, उससे जो है ना 20 गुनी और 10 गुनी ज्यादा होगी. अब आप हमारी मूर्खता है. अब हम जो है ना ये जबरदस्ती जो है ना एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं, जिसमें एक भी दवा जो है ना वो पूर्णतः सेफ नहीं होती, जिसमें डॉक्टर भी कहता है इट इज ए रिलेटिवली सेफ मेडिसिन. तो भाई साहब, जो मेडिसिन रिलेटिवली सेफ है, पूरी तरह सेफ नहीं है, ऐसी मेडिसिन को क्यों लिया जाए जब तक कि बहुत ही बड़ी मजबूरी ना हो. और आप भर भर के हमको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज में तो एंटीबायोटिक इतनी आसानी से दिया नहीं जाता है. तो ये तो पूरी चारों तरफ से दुष्ट ही दुष्टता है. आप जब इसको आगे पढ़ेंगे, पीछे यदि पन्ने पलटेंगे आप, तो वहाँ एडमिन पोस्ट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा. जी सर, मैं आई विल हैव अ लुक एट दैट. और जिनको भी मैं ऐड करने के लिए भेजूंगी, जो इंटरेस्टेड होंगे उनको आई विल शेयर इट. और थोड़े आपके व्यूज भी, जो हमारी डिस्कशन हुई है इतनी डिटेल्ड, मैं उनको वो भी थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारी चर्चा हुई है, चूंकि उसमें आपकी और हमारी दोनों की आवाज है, तो आपकी आवाज आपके जुड़े लोगों से वो ज्यादा महत्व रखेगी. तो दिस वीडियो विल बी मोर यूजेबल देन 14 और 1500 और वीडियोज अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है ना? और फिर जो है यदि उनके कुछ शंका होंगे तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको रिमूव करेंगे. क्या दिक्कत है?
ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इनएक्टिव होगा, जो या फिर जो कोई इनएक्टिव लोगों को हटाना है, क्योंकि हाँ नहीं, उसका जानते रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो हमारी एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि मुकेश मिश्रा नामक एक पत्रकार कम एडवोकेट था। नहीं सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। जो हमारे एडवोकेट इतना धूर्त था कि जो बहुत अच्छा उसने तो एक आदमी को नहीं जोड़ा, और ये इतना धूर्त आदमी था कि जो अच्छा कर रहे थे उनको फोन लगा के डिस्करेज करता था। मतलब खुद फोन लगा के, मतलब ही वॉज डूइंग एंटी एक्टिविटी। ही वॉज जस्ट लाइक ए क्रिमिनल। वो तो देशद्रोही, मेरी नजरों में तो वो देशद्रोही है कि नहीं? हाँ जी सर। चलिए, रिमूव करिएगा जो इनएक्टिव हो, जो भी हो। हाँ, और नहीं, क्योंकि हमें देखिए, हमें 37 करोड़ लोगों को अपने फोल्ड में लाना ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है ना। ऑप्शन बहुत हैं। और मैं आपको बताऊं, युवा को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, ये मॉडल मिल जाएगा। आप बताओ, जो है जो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, आज वो नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन गए हैं, और जो भी बिना मांगे, तो इससे बड़ा ऑप्शन क्या होगा? कल यदि चुनाव की स्थिति बनती है तो प्रतिष्ठा पॉइंट में केवल एक ही बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो दुराचारी नहीं हो, भ्रष्ट ना हो, और अपराध रिकॉर्ड का ना हो। यदि इनसे वो साफ सुथरा है तो उसे टिकट मिलना 100% गारंटेड है। अब बताइए, ये मौका कहाँ मिलेगा? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी? आपसे बात करके, आपका विजन अच्छा है, और मैं थोड़ा सा और जो है कुछ बात जो डिस्कशन हमारी हुई है उस पर मैं और अपने आप जो है ना, अपने पापा को जोड़िए, चाचा को जोड़िए, जरूरत पड़े तो मेरे से बात कराइए उनकी। उनके नंबर शेयर करेंगे तो मैं फोन लगा लूंगा। वो हमारे सीनियर हैं, उनसे बात करके मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। जी जरूर, है ना? चलिए स्वाति, इट्स ए रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी, सेम हियर सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।